جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, یہ بڑا زبردست نہیں ہے یہ؟ یعنی سوال آپ سے کیا جائے کہ چودھری شوگر ملز آپ نے کیسے بنائی, بچے چھوٹے تھے اس کے ڈائریکٹر بنے, جن وسائل سے آپ نے بنائی وہ وسائل آپ کے ڈکلیئر شدہ ایسٹس میں موجود نہیں تھے, پھر آپ نے پیسے باہر منتقل ہوئے, پھر باہر سے $1.5 کروڑ پاکستان آیا قرض کے نام پر, کیسے ہوا؟ اس کا جواب بڑا زبردست جواب ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. امیر عباس, یہ تماشا ہم پچھلے جب سے پیناما کا کیس سامنے آیا ہے اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی ہماری پروسیکیوشن اور عدالتی نظام بہت ہی عجیب سا ہے کہ یہاں سوال گندم جواب جو, اور اس پر بھی مقدمات سالہ سال تک چلتے رہتے ہیں. یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کا ہی دیکھ لیں, کب سے یہ کیس چل رہا ہے. سوال مختصر 4 ہیں. کیا یہ آپ کی ملکیت ہیں؟ آپ نے کس دور میں خریدے, کتنی رقم میں خریدے, اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا؟ ان 4 سوالوں کے جواب تو ہمارے پورے نظام کو, تفتیشی نظام ہو, پروسیکیوٹرز ہوں یا ہمارا عدالتی نظام ہو, ان کو ان سوالوں کا جواب 2.5 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ملا. آج یہ جو شوگر مل کا کیس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے عدالتی نظام اور پروسیکیوشن سسٹم کو دیکھ کر ہی وہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ شوگر مل کیسے لگائی اور کم عمر بچے اس کے مالک کیسے بن گئے. تو انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. ہم کل بھی ڈٹے ہوئے تھے, آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے اس ملک میں نظام ہی کچھ ایسا ہے جس کا خود وہ بنانے والے ہیں اور وہ رہے ہیں. نہ انہوں نے ان قوانین میں تبدیلی کی, نہ اس نظام کو ہی درست کیا, اور اب اسی نظام میں کی آڑ میں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ کہ ہمارے ملک میں بڑے سے بڑے مجرم اور بڑے سے بڑے ملزم آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سالہ سال بتا دیتے ہیں, اور عدالتیں ہماری وہ جواب لینے میں آج تک ان سے مجبور ہیں, معذور ہیں کہ وہ جواب کیسے ہے, وہ 4 سوالوں کا جواب کون دے گا. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ اسٹیٹ, اور یہی وہ پولیٹیشنز کی بیوٹی ہے کہ وہ اس طرح کے سوال اچھال کر چند نعرے لگانے والے, چند مفاد پرست ان پر پھول ڈالیں گے, چند لوگ نعرے لگائیں گے اور بات اگلی تاریخ پہ منتقل, which is a very very disappointing state for the people of Pakistan. رائٹ. جنرل صاحب 339 ملین قرضہ بھی لیا تھا اسی چودھری شوگر ملز کے اوپر میاں صاحب نے 1997 سے 1999 کے درمیان. تو اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اور آپ قرضہ لے رہے ہیں, تو پھر تو اور آپ سے پوچھنا پڑے گا نا کہ یہ آپ نے یہ سارا کچھ کیسے بنائی ہے. امیر عباس, بالکل یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی سینکشننگ اتھارٹی کون ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. اور یہی یہ انسٹیٹیوشن بنواتے ہیں, انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے جتنے لونز آج تک رائٹ آف ہوئے ہیں, یا ابھی جو ایک بینک کا کیس چل رہا ہے بڑا مشہور, اسی میں آپ دیکھ لیں کہ اگر بینک جو ہے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ جو ان کا فرض ہے انیشیٹ کرنا, اس کو وہ انیشیٹ نہیں کرتے, اور ایک گمنام شخص کے نام 2.5 ارب روپے جمع ہو جاتے ہیں, اور آج تک پورا عدالتی نظام, پوری پروسیکیوشن اور ہمارے جو لوئرز ہیں وہ سب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ 2.5 ارب کا شخص مالک ہی نہیں ہے, وہ کس کے تھے, کہاں سے آئے, کس نے لیے, کہاں گئے, اور یہ تماشا بنا ہوا ہے, اور ہر آدمی اس کو انتقام کا نام دے کے قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. حکومتیں انہیں استعمال کرتی ہیں, بیوروکریسی ان کو اسسٹ کرتی ہے, اور پھر ہمارے وکلاء حضرات ان کے تحفظ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کتنا بڑا کیس تھا منی لانڈرنگ کا ایان علی کا, جو شخص تحقیقات کر رہا تھا اس کو قتل کر دیا گیا. بالکل صحیح. اور وہ ایان علی, اس کا دفاع کرنے والے ہمارے کتنے بڑے سینئر سینیٹر اور وکیل اور گورنر صاحب تھے جو ان کا دفاع کر رہے ہیں. آج وہ عورت باہر بیٹھی عدلیہ کا منہ چڑھا رہی ہے, اور عدالتیں مجبوراً بھیک مانگ رہی ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں کیونکہ ہم نے آپ کے خلاف کیس چلانا ہے. تو اتنی بڑی موقری مذہب معاشرے میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. اچھا, میں ذرا سب کو, خاص طور پہ ویورز کو یہ بتاؤں کہ جس کیس میں آج میاں صاحب کا ریمانڈ لیا گیا ہے نیب کی جانب سے 14 روزہ, اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شریک ملزم کے طور پہ ایک طرح سے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ یہ کہ وہ میجر شیئر ہولڈر ہیں چودھری شوگر ملز میں, اور مریم نواز صاحبہ کو 1 کروڑ 24 لاکھ 1455
शेयर्स मिले, यानी इतने शेयर्स की वो यानी हिस्सेस की वो मालिका हैं। सईद सैफुल जबर बिन सऊदी की जानिब से मरियम नवाज साहिबा को 94 लाख शेयर्स यानी हिस्सेस मुंतकिल किए गए। शेख ज़काउद्दीन ने 20,17,100 शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल किए, जबकि हानी अहमद जमजून ने भी कुछ शेयर्स मरियम नवाज साहिबा को मुंतकिल किए। राजा साहब, जवाब एक ही है, वोट को इज्जत दो। ये एक बिल्कुल आइडेंटिकल केस है, आपको हुदैबिया का केस याद होगा, एग्जैक्टली उसी लाइंस पे ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक परफेक्ट केस है कि किस अंदाज में मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में शुरू हुई। हुदैबिया वाला केस, ये केस, और इस केस में मुझे लग रहा है कि उसके कुछ चैप्टर्स दोबारा आते हुए नज़र आ रहे हैं, और किस अंदाज में ये जो आपने फॉरेनर्स के नाम लिए, अरबियों के, शेखों के और 2 और कंपनीज हैं, किस कंसिडरेशन के तहत ये जो शेयर्स थे ये मरीम साहिबा को ट्रांसफ़र हो रहे। मरीम साहिबा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। अब 1 करोड़ अगर शेयर है तो मिनिमम अगर 10 रुपये भी एक शेयर की कीमत हो तो 10-15 करोड़ उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन 10 रुपये शेयर नहीं होता। वैसे 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स थे जी, तो मिनिमम जो उसकी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस होती है वो 10 रुपीज़। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि अगर मरीम साहिबा को पता नहीं तो ऑब्वियसली कि वो उस वक़्त उस एज की नहीं थी या बिजनेस में नहीं थी, तो इनके वालिद साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो मरीम साहिबा की ये स्टेटमेंट कि मेरे इल्म में नहीं लीड्स टूवर्ड्स कि जी फिर वालिद साहब की ही ये इन्वेस्टमेंट थी, और अगर उनकी इन्वेस्टमेंट थी जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया था, तो दिस ऑल लीड्स कि वो जवाब दे हैं इस कौम के सामने, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के मियाँ साहब के वकील ने, मियाँ साहब के वकील अमजद परवेज साहब ने आज कहा कि ये मिल मियाँ साहब ने कायम की थी, और जब ये कायम हुई थी तो उस वक्त बच्चे डायरेक्टर थे और हिस्सेदार थे। अगर वो बच्चे थे और वो डायरेक्टर बच्चे थे तो फिर ये 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स मरियम नवाज साहबा के बच्चे कहाँ से हासिल? देखिए, यही वो वजूहात है कि नैब के कानून को ये तब्दील करना चाहते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे एसेट्स की केस आ जाए तो बर्डन चला जाए कि जनाब पहले प्रोसिक्यूशन साबित करे कि किस फलाने केस में हमने किक बैक ली। हम शुरू से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जी मुझ पे 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, मियाँ साहब पे कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अब अगर आप करप्शन को सिर्फ ये देते हैं कि जैसे एक पुलिस वाला एक 50 रुपए का नोट रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, सिर्फ वही करप्शन है, और ये अरबों करोड़ों रुपए के शेयर्स आने, ये प्रॉपर्टीज बनानी, ये सफाई के साथ इसको अगर आप करप्शन नहीं कहते, इस पे तो एक बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की जनाब। ये तो कंपनीज ऑर्डिनेंस का केस बनता हुआ नजर आता है कि कैसे हिस्से जो उनसे हैं वो ट्रांसफर होते हैं। नॉट एट ऑल, ये आपने तमाम चीज़ों का जवाब देना है। अब उनको रिमांड पे लिया गया है क्योंकि मरीम साहबा की शायद बेल भी इस केस में लगी हुई है, वो भी इसी में अरेस्ट हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेन एक्यूज्ड वो हैं। अब मियाँ साहब का एक केस तो चल रहा है अजीज़िये वाला, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं, वो जज अरशद वाला के ज़मानत वगैरह, लेकिन इसमें अगर अब उनको 90 डेज़ के लिए रखा जा सकता है नैब की कस्टडी में, नैब उनसे तफ्तीश करेगी, और जब ये 90 डेज पूरे होंगे तो उसके बाद कोई ये बेल वो जुडिशियल रिमांड पे इस केस में चले जाएंगे और फिर कोई, यानी अगर अल-अज़ीज़िया में बेल मियां साहब को बेल मिल जाए, इक्विट हो जाए, रीट्रायल की तरफ वो चला जाए कि जनाब इसका दोबारा से ट्रायल हो या री राइटिंग ऑफ जजमेंट हो, जो भी अगले 6 महीने तक तो आपने मियां साहब यहाँ पे वो अफराद जो बड़ी बातें करते हैं कि जी शायद इस मुल्क में कोई डील हो रही है, कोई डील हो रही है, तो उससे ये बात क्लियर है कि ये केस जो सा है अगले 6 माह 8 माह साल के लिए बेल की हद तक, और अब 14 को मरियम बीबी की बेल लगी है। अब हमने देखना है कि अगर जैसे वो प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं, तो अगर मियाँ साहब को स्टेज पे अरेस्ट किया है, क्या उन्हें बेल मिलता है या नहीं मिलती, तो इट्स वो जो इसको कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूँगा कि नैब ये पहले दिन तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, उसके बाद अब इन रेफरेंसेस को तवालत ना करे, इसमें प्रॉपर एविडेंस, इसमें तो बड़े क्लियर एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, कंपनीज का रिकॉर्ड है कि शेयर्स को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो आई बिलीव कि इसी को सामने रखते हुए 28 जुलाई को जो उन्होंने अपना बयानिया दिया था कि वोट को इज्जत दो, और हम देख रहे हैं कि वो जो इन्होंने कहा था कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ, आज भी नजरिए की बात की, और वही साथी महमूद खान अचकजई देख लें, आप देख लें, उधर से ANP आ रही है, इधर से मौलाना साहब हैं, तो ये वही एलिमेंट्स हैं कि जो दोबारा आज आप
कुछ अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हुए, अजीबोगरीब नाराबाजी हुई जब इनको लाया गया और वहां पे इस मुल्क के अदारों के खिलाफ आगे जाके जनरल साहब नाराबाजी हुई। तो हम देख रहे हैं कि ये उसी ट्रेंड को, उसी चीज को लेकर आगे बढ़े हैं। शुराई साहब जी, शुराई साहब, जनरल साहब ने कहा कि सवाल गंदुम जवाब जौ या जवाब चना, यानी मियाँ साहब जो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो इतनी इवॉल्व हो गई है कि अब इस डेमोक्रेसी में मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है। यानी ये जो लम्हा गुजरा है, इस लम्हे के बारे में भी हम अपने हुक्मरानों से पूछ सकते हैं, मौजूदा हुक्मरानों से या माजी के हुक्मरानों से, कि आपने क्या किया। मियाँ साहब कहते हैं कि पिछले 30-40 सालों का मुझसे कोई हिसाब न मांगा जाए, सिर्फ वोट को इज्जत दें। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि वो सियासी जमातें कि जो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रही हैं और उसके पीछे जो बुनियादी लॉजिक है अमीर, वो ये है कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, गोया कि सड़कों पे आके इसकी अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं। यही एक चार्जशीट है इस गवर्नमेंट के खिलाफ कि शायद वो परफॉर्म नहीं कर सकी, लिहाजा इनको घर जाना चाहिए। तो जो मौजूदा हुकूमत से अकाउंटेबिलिटी का तकाजा कर रहे हैं और उनको घर भेजना चाहते हैं इस स्ट्रीट प्रोटेस्ट के ज़रिए, वो ख़ुद अपने 3 टर्म्स का हिसाब देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और वो प्राइम मिनिस्टर साबिक के जो फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्लेम कर चुका है कि एक एक पाई का हिसाब उनके पास मौजूद है और जब उनसे पूछा जाएगा तो पेश भी कर देंगे। और मेरा ख्याल में पनामा केस से लेके अब तक उनसे बार बार यही सवाल किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपके जो ज़राए आमदन थे वो क्या थे और आपने जो असासे बनाए वो कैसे बनाए। और बड़ा सादा सा सवाल है, आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। जब आपको सज़ा हुई तो आप ये फरमाते हैं कि जी केस था पनामा का, आपको अकामा में घर भेजा गया। वो भी तो मेरे ख्याल में ठीक भेजा गया, क्योंकि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव की आप सीट को ऑक्यूपाई करके बैठे थे और 1 साल ऊपर हो गया था और आप एक अकामा भी अपने पास रखते थे और आपने अपने किसी भी स्टेटमेंट के अंदर उसका जिक्र तक नहीं किया। तो मेरा ख्याल में वो भी जो आपको सज़ा दी गई है बड़ी मेरिट पे दी गई है। बाकी ट्रायल कोर्ट में जब एहतसाब अदालतों में केसेस गए हैं, वहाँ पे भी आपसे बार बार यही पूछा गया। JAT के सामने भी जब आपका पूरा ख़ानदान पेश हुआ, आपसे यही सवाल किए गए, इवन आपकी स्टेटमेंट्स नहीं मिलती थी। उसके बाद जो बाहर से एक आपका फोरेंसिक एक तरह से वो कराया गया, उसके अंदर भी बताया गया कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए उसके अंदर कितनी फौजरी की है, कितनी आपने गलत बयानी की है। तो मेरा ख्याल में अब उनको ये बात ज़ेबा नहीं कि वो बजाय ये है कि अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करें, अदालतों में अपने आप को सुरखरू करें, रादर वो इदारों को ब्लेम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जो इस वक्त अदालती अमल चल रहा है वो बुनियादी तौर पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। जमहूरियत के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान बदल गया है और किसी से पूछा जा रहा है तो उनको हौसला दिखाना चाहिए। और अगर जिस तरह वो क्लेम करते हैं साहब के पूछा क्यों जा रहा है, नहीं मैं तो यही है बिल्कुल, लेकिन वो जब क्लेम करते हैं और बड़े सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि बिल्कुल बड़े ये जायज़ उनके ज़राए थे और उनके वालिद ने और उसके बाद उनके भाइयों ने मेहनत से सब कुछ बनाया है, तो फिर बताने में क्या हर्ज है। फिर तो चाहिए कि जो शहबाज शरीफ के साहबजादे बैरून मुल्क बैठे उनको भी वापस आना चाहिए। खुद इनको भी चाहिए कि बड़े खुले दिल के साथ कहें कि जी बिल्कुल करें, हम सपोर्ट करेंगे इस सारे प्रोसेस को। रादर ये कि कभी आप बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जमहूरियत के लिए ख़तरा है, कभी आप कहते हैं कि आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, कभी आप कहते हैं कि जुर्म कुछ और का आपका था, सज़ा आपको कुछ और दी जा रही है, कभी आप ये कहते हैं कि जी एक इदारा है कि जो बुक से भरा बैठा है, फैसले पहले लिखे जाते हैं, सुनाए बाद में जाते हो। तो मेरे ख्याल में ये नैरेटिव आपको ज़्यादा बिकने वाला नहीं है। और जो बात आपने की है कि आप सब नज़रियाती हो गए हैं, आपका नज़रियातीपन तो ये है कि आपका सगा भाई भी आपके साथ अमीर अब्बास नहीं खड़ा नहीं हो रहा। कल आपके सामने थी, कल की जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो यही थी कि माजी में मैं अपने भाई को समझाता रहा हूँ और टकराव और तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए। बड़े भाई को छोटे भाई को खत लिख के बताना पड़ रहा है, यानी डॉक्यूमेंट हो जाए कि मैंने क्या नसीहत की तो है। मेरा नहीं ख्याल, मिसट्रस्ट ये हो चुका बिल्कुल। तो आपका नज़रियातीपन, आपके सगे भाई पहले उनको कन्विंस करें कि आप नज़रियाती हो गए और आपके साथ खड़े हों। वो भी समझते हैं कि इस वक्त जो कंट्री की सिचुएशन है और फिर आपकी जो लड़ाई के पीछे लॉजिक इतनी स्ट्रांग नहीं है। गोया कि आपको कोई पर्सनल इशू तो हो सकता है, बट आप ना तो इस 22 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।